welcome to the Maths Pathshala by Anand Saigal. Today we are going to unlock the secrets of number system, a chapter that seems easy but holds the key to understand algebra, geometry and even real life problems. We will explore how numbers are classified and I'll tell you the easiest way to remember them, whether it is rational, irrational, integer, etc. So just grab your notebooks because this video might just change how you see numbers forever. So let's just start. See, in the number system, we have to study about different types of numbers, but mainly we have to study about rational and irrational numbers. Second thing, we have to study how to represent the rational numbers on the real number line. And then we will study how to convert the decimals into rational numbers. Okay. So I have drawn a chart here. You can see I have drawn a chart showing the hierarchy of number system. So in the number system we have two types of numbers, imaginary numbers and real numbers. In the real number we have rational, irrational. Rational are of further two types, integers, non-integers. Integers are of three types, negative, zero and positive. Non-integers, fractions and decimals. Decimals are further of two types, recurring and non-recurring. I'll explain all these to you. First I am just verbally telling you the classification of number system. Now in the positive integers we have two types, whole numbers and your natural numbers. Okay. Now what are imaginary numbers? See, आपको imaginary numbers में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर रूट में आपका कोई नेगेटिव नंबर होता है, स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर है अगर आपका, तो वो इमेजिनरी नंबर बनता है, क्योंकि उसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए उसको इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है. क्या ध्यान रखना है, अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी बन जाएगा. ओके, इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में रीड करेंगे. नेक्स्ट इज योर रियल नंबर. Now what are real numbers? All the numbers in the number system are real. What I said, नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं आपके वो सारे रियल हैं, फिर चाहे वो आपका रेशनल हो या फिर इरेशनल हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ज़ीरो हो, कुछ भी नंबर, कुछ भी, वो सारे आपके रियल नंबर्स हैं. रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर. मैंने लिखा हुआ भी है साइड में, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख के बताता हूँ. जैसे 0.8 लिख दिया मैंने, या फिर -3 लिख दिया मैंने, ये सब आपके रियल नंबर्स हैं. मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/5, सब रियल नंबर्स हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, रियल नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रेशनल एंड इरेशनल. Now rational and irrational we will study in detail in this chapter, so I'll tell you these numbers later. Rational numbers are further divided into two categories, integers and non-integers. Integers are denoted by capital I or capital Z. Okay, so what are integers? See, all the negative numbers, all the positive numbers and zero. ऑल द नेगेटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, ये सब मिल करके आपके इंटीजर्स बनाते हैं. ये सारे इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं. ओके, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, -1, -8, -20, इस तरह से -300, ये सब इंटीजर हैं. 0, 1, 2, 100, 200, ये सब आपके इंटीजर्स हैं, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी और ज़ीरो भी. ओके. नाउ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ना तो वो नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में है, ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में है, वो अलग है अपना. ओके. नेक्स्ट, इन द नॉन इंटीजर्स वी हैव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. फ्रैक्शंस तो आपको पता ही है, जैसे मैं अगर लिख दूँ 5/2
या फिर 3/4, ये सब आपके फ्रैक्शंस है जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। ओके, नाउ इन द डेसिमल्स वी हैव रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। नाउ व्हाट इज रिकरिंग? रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, ऐसा डेसिमल जो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ 6.666, ये जो डेसिमल है ये रिपीट हो रहा है, देखो पॉइंट के बाद रिपीट होता जा रहा है, तो ऐसे डेसिमल्स को रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट इज नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जो डेसिमल एक जगह पर टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, रिपीट ना हो बार बार। जैसे 2.5 सी टर्मिनेट हो गया, रुक गया। ओके, तो ये नॉन रिकरिंग है। नाउ नेक्स्ट, इन द पॉजिटिव इंटीजर वी हैव होल नंबर्स एंड वी हैव नेचुरल नंबर्स। नाउ व्हाट आर होल नंबर्स? 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं आपके सारे होल नंबर्स हैं। क्या बोला मैंने? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं सारे होल नंबर्स हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक आपके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके होल नंबर्स हैं। नाउ व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स जो हैं आपके वो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स नेचुरल होते हैं। ओके, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। एंड नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल W. Remember that. Now I have drawn another, you can say, table for you for more understanding, more clarity. See, all the natural numbers are whole numbers, all whole numbers are integers and all integers are rational numbers. क्या बोला मैंने? सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं और सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं और सारे रेशनल नंबर आपके रियल नंबर्स हैं। ओके, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से इन्फिनिटी तक, और होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक। तो देखो ये होल नंबर में ये 1 से इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स आ गए ना, तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स क्या बन गए? होल नंबर्स बन गए। ऐसे ही सारे होल नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं। कैसे? देखो इंटीजर में ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये होल नंबर्स ही तो आ रहे हैं, तो इंटीजर्स में सारे होल नंबर आ गए, तो इसलिए सारे होल नंबर्स क्या बन गए? इंटीजर्स बन गए। ऐसे ही सारे इंटीजर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अब ये रेशनल नंबर क्या होगा मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप ध्यान रखो कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? वो रेशनल नंबर होते हैं। ओके, और ये सभी नंबर क्या होंगे? रियल होंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव written here and what I have explained. Now let's move on to the rational numbers, the main topic of this chapter, rational numbers. So what are rational numbers actually? Any number which can be expressed or which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0 are rational number. अब ये क्या है? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। सही, वो सारे नंबर जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हो, जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर हों और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब अभी भी समझ नहीं आया कैसे? देखो वो सारे नंबर जिनको आप P अपॉन Q क्या है? P अपॉन Q का मतलब है फ्रैक्शनल फॉर्म। वो सारे नंबर जिनको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख पा रहे हो। ओके, P न्यूमरेटर है, Q डिनोमिनेटर है। ये खाली उसको डिनोट करने के लिए P और Q वेरिएबल का यूज़ किया गया है। ओके,
तो वो सभी नंबर जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब p और q कौन से इंटीजर होने चाहिए? कोई से भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, p और q दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं और p और q दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, p कोई एक नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। अब डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो, फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं सारे। देखो, p अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई, दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल नंबर हो गया। -8 और 9 दोनों इंटीजर हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो -8 अपॉन 9 दोनों इंटीजर हैं और आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें भी दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ये इंटीजर है लेकिन रेशनल कैसे हुआ? इसका तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो भाई जब ऐसा होता है तो हम क्या कंसिडर करते हैं? किसी के भी डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर करते हैं। तो अब तो हो गया ना रेशनल, दोनों इंटीजर हो गए और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हुआ। तो 0 कैसे हुआ रेशनल नंबर? अभी तो आपने मना किया था, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को मना किया था, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे 0 है तो 0 के डिनोमिनेटर में क्या होगा? 0 के डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर करेंगे। जब हमको कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या कंसिडर करते हैं? 1 कंसिडर करते हैं। तो ऐसे ही 0 के डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखो 0 और 1 दोनों इंटीजर है, अभी बताया था इंटीजर्स में 0 आता है, तो 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं और आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। 9 भी इंटीजर है, कैसे? डिनोमिनेटर में 1 है। तो ये थे रेशनल नंबर्स। अभी आप लोग समझ गए होंगे व्हाट आर रेशनल नंबर्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताना था आपको, सी देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर। किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। So here we come to the end of video. I explained you the hierarchy of number system, about different types of numbers, what are they. I explained you about rational numbers, example से भी समझा दिया है, important points भी बता दिए हैं। In the next video we will start exercise 1.1. Thanks for watching and subscribe the channel, and if you like the video please click the like button.